बनाया हुआ है? भाई ये AKM है, PUBG प्लेयर है, नेट बंद हो रखा है, एस टीयर का प्लेयर हूँ, खेल नहीं पा रहा हूँ। अब आप लोग यहाँ अपना टाइम कैसे पास कर रहे हैं? इंटरनेट एक्चुअली हम लोग गॉसिपिंग कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। अगर सब मिलके अगर कुछ ठान ले तो वो होके ही रहेगा। ये हम लोग के लिए अफगानिस्तान से गिफ्ट आया है अभी, अफगानिस्तान से अफगानिस्तान से ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है हम इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि पेपर लीक पे वो करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। कड़ी कार्रवाई मांगी किसने है? हम तो यहाँ पे उनका प्रोटेस्ट का वो मांग रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहे हैं। आधी से ज़्यादा हिंदुस्तान किराए के मकान में रह रहा है। मैं संदेश देना चाहता हूं मोदी जी को, पेशाब करने तक की सुविधा नहीं है। आप लोग सुविधा करने की बजाय मतलब असुविधा पैदा कर रहे हो, मेट्रो को बंद कर रहे हो। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, जाते आए दादे लगे हैं। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨਜੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੋਸਟ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਚੱਲੇ, ਡਾਂਗਾ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਹੱਜੂ ਆ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ? हाँ जी, ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ऐसा क्योंकि ये हमारा फर्ज बनता है। ਨਿਹਾਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜੇ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਇੱਥੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੇਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ RAF ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਆ ਕੋਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਸ प्रदर्शन दी। भैया ये क्या बनाया हुआ है आपने? भाई ये AKM है, PUBG प्लेयर है, नेट बंद हो रखा है, एस टीयर का प्लेयर हूँ, खेल नहीं पा रहा हूँ। अब बताइए क्या करें? प्रोटेस्ट तो अलग की चीज़ है, मैं अपना PUBG नहीं खेल पा रहा हूँ। अब मुझे एस पे जाना है, मैं क्राउन पे रह गया अभी तक। तो अब आप लोग यहाँ अपना टाइम कैसे पास कर रहे हैं? इंटरनेट तो चल नहीं रहा। गॉसिपिंग कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग गॉसिपिंग कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। क्या बात हो रही है अब? वही लाइक एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कब देगा, कब तक हम यहाँ धरने पे बैठे रहेंगे। कहाँ से आए हो आप लोग? मैं गुड़गांव से आई हूँ। सेम गुड़गांव। नहीं महाराष्ट्र कोल्हापुर। कब आए थे महाराष्ट्र? 2 दिन हो गए इधर। माहौल नजर आता है? फिलहाल तो अच्छा लग रहा है, दोस्त वगैरह बन रहे हैं। प्रोटेस्ट है तब तक तो। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मोदी जी सबसे पहले राघव चड्ढा। ठीक है, देख ले, कोई बात नहीं। अरे बता रही है पापा, आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे हूँ। आई नो आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो बट मैं पापा बीजेपी सपोर्टर है? यस, मेरे पापा बीजेपी सपोर्टर है एंड तो ठीक है। बट मैं एक चीज़ मोदी जी को बोलना चाहूँगी कि मोदी जी सबसे पहले राघव चड्ढा को आप हटाओ क्योंकि वो आपके लिए भी पनौती था एंड आप बीजेपी के लिए भी पनौती है। पहले अपने पनौती को हटाओ तभी आपका भला हो सकता है। नहीं अच्छा है, राघव चड्ढा वहाँ गया है, मोदी भी तो हटेगा, बीजेपी हटना चाहिए। आई थिंक राघव चड्ढा एक मिशन पे गया है कि पहले मैं आपका तो पनौती लगा ही दिया, अब मैं बीजेपी का जाके पनौती लगाऊंगा। आई थिंक बीजेपी राघव चड्ढा अभी भी आपके सपोर्ट में है, तभी तो वो पनौती बीजेपी में गया है। आप लोग कहाँ से आए हो? हम तो दिल्ली के लोकल ही यहीं के। हाँ जी, बस सुबह सुबह आते हैं, रात को चले जाते हैं। बस चाहे अच्छा लग रहा है, मतलब सबका सपोर्ट देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई स्टूडेंट भी कुछ कर सकती है अगर इकट्ठे सारे हो जाए तो बस अच्छा लग रहा है।
अगर सब मिलके अगर कुछ ठान ले तो वो होके ही रहेगा। सरकार तो अभी फिलहाल मान नहीं रही है, तो कब तक बैठोगे? बस सब देखते कब तक करते हैं हम, हमारे ऊपर तो नहीं ना, बस हम तो बस यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, बस अब जब तक सुनती नहीं है तब तक हम यहीं पे। क्या ही बोलूँ अब मैं। जैन जी, इसका ना एक अलग तरीका है मतलब अपना काम करने का, तो कैसे टाइम पास कर रहे हो? बस बातें करते बैठ के बातें करते कि कैसे होएगा, किस टाइम पे क्या हो सकता है, बस यही रह गया बस, और तो नहीं कुछ। आपके पापा बीजेपी सपोर्टर नहीं है? नहीं पापा इनके पापा बीजेपी सपोर्टर भाई है। ये देखिए हम लोग के लिए अफगानिस्तान से गिफ्ट आया है अभी। अफगानिस्तान से? अफगानिस्तान से ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है हम इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया जा रहा है जी। ये फंडिंग कहाँ से हो रही है? ये फंडिंग ऑल ओवर वर्ल्ड से हो रही है, हमको पता ही नहीं है कौन खाना दे के जा रहा है, किसने ये फैन भेजा है यहाँ पे, हम लोग को पता नहीं चलता। यहाँ पे खाने आ जाते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता किसने भेजा है, बस जो भी डिलीवरी वाला बोलता है। महाराष्ट्र से आए? नहीं, मैं यूपी से आया हूँ, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश जी। का इलाका तो बड़ा फेमस रहा अजय मिश्रा टेनी की वजह से। जी, अजय मिश्रा टेनिंग के पड़ोस में मेरा घर है, उन्हीं के शहर गाँव में। अंदर लेके चलते हैं तो अनुभव लोग का गल करते हैं। तो आप क्या बने हुए हो? मैं स्पाइडरमैन बना हुआ हूँ। क्यों? बचाने आया हूँ मैं सबको यहाँ पे, क्योंकि कोई रिश्तेदार नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो रेजिग्नेशन लेने आया हम थोड़ा थोड़ा। किसका रेजिग्नेशन लेना? चले धर्मेंद्र प्रधान। आप भी इनके साथ आए? हाँ जी, कहाँ से? हम भी हौस से हैं। दिल्ली से ही हो? हाँ, दिल्ली से। क्यों आ रहे हो, क्या माहौल लगता है? अब माहौल की क्या बात करें, जो जिसका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं वो तो दे नहीं रहा है, और मोदी जी कह रहे हैं कि पेपर लीक पे वो करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। कड़ी कार्रवाई मांगी किसने है? हम तो यहाँ पे उनका प्रोटेस्ट का वो मांग रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से ही हूँ, हौस खास। तो क्या कहोगे अपने साथी आपके कह रहे हैं? मैं इन्हें सपोर्ट करता हूँ, बढ़िया कर रहे हैं सब, बस। अरे मैं भी इन्हीं के साथ ही आया हूँ। नेपाली है झूठे। सच सुनने की ताकत बोलिए है। आप, सर आप बोलिए। 1947 से लेके और आज 2026 तक, अरे सुनो 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 1947 से लेके 2026 तक, ठीक है, कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें गई, किसको देश की जनता की सही मायनों में फिक्र है, इस बात का जवाब दे दीजिए। किसको फिक्र है? सब अपनी राजनीति रोटी सेक रही है। आम जनता की जिंदगी में क्या परिवर्तन आया है? आप इस बात पे आइए ना। आप उस सवाल को क्यों भूल जाते हैं जब एक आधी से ज़्यादा हिंदुस्तान किराए के मकान में रह रहा है। आधे से ज़्यादा मकान जो है आपका, आधे से ज़्यादा जनता जो है किराए के मकान पे रह रही। कैसे डेवलप कर लिया आपने देश? 20 रुपये रोज़ पे गुजारा करने वाले भी इस देश के अंदर बैठे हुए हैं। सच को मुकरते क्यों हो? आपकी राजनीति सत्ता के चक्कर में वीआईपी कल्चर आपका, सब कुछ आपका है। आप अगर जाओगे तो जाम लग जाएगा, एक आम आदमी की एम्बुलेंस फंस जाती है, कोई जिए या मरे आपको फिक्र नहीं है। ठीक है जी, हिंदुस्तान का नब्ज पकड़ी हुई है आपने जनता की, आपने जनता की नब्ज पकड़ी हुई है। कभी हिंदू मुसलमान करवा दो, कभी कोई और मुद्दा उठवा दो, लेकिन जनता के लिए सही मुद्दे, सही बात आप करोगे नहीं। जब आप नोटबंदी करवा सकते हो, जीएसटी करवा सकते हो, एक एक आदमी को बैंक में लगवा सकते हो लाइन पे, तो एक एक आदमी को आप काम भी दे सकते हो, लेकिन आप लोगों की नीयत नहीं है। ये जो एक मिनट मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपकी नज़र में, आप लोगों की नज़र में, मतलब मीडिया हमसे सवाल कर रही है, लेकिन हम मीडिया से ये सवाल करना चाहते हैं कि जो कल 16 स्टेशन पहले बंद करे, फिर 18 कर दिए, अब आज की डेट में 20 से भी ज़्यादा स्टेशन, मेट्रो स्टेशन बंद हैं। पब्लिक परेशान है, आम पब्लिक भी परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं। प्रोटेक्शन को कुचलने के लिए, इस आंदोलन को कुचलने के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा है। मतलब हमारे फ़ोन बिल्कुल बेकार कर दिए गए हैं। लेकिन एक मैं संदेश देना चाहता हूँ मोदी जी को कि मोदी जी, जो युवा इंटरनेट के बिना 1 मिनट अपनी नहीं काट सकता, वो आज हफ्तों से इन फ़ोन डब्बे बन गए हैं, लेकिन इन फ़ोनों के बिना ज़िंदगी जी रहा है और यहाँ पे अड़े हुए हैं, पसीनों में लबालब हैं, गर्मी है, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, पेशाब करने तक की सुविधा नहीं है। आप लोग सुविधा करने की बजाय मतलब असुविधा पैदा कर रहे हो, मेट्रो को बंद कर रहे हो और मतलब इंटरनेट को बंद कर रहे हो। ऐसे करने से क्या समझ रहे हैं आप? कुचल जाएगा आंदोलन। आंदोलन कुचलेगा नहीं। कल जो बॉम्बे में हुआ वो सबको पता है, इंदौर में क्या हो रहा है वो सबको पता है, पटना में क्या हो रहा है वो सबको पता है, हापुड़ में क्या हो रहा है वो सबको पता है, मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा है वो सबको पता है।
क्रांति पूरे देश के अंदर खड़ी हो चुकी है और युवा जाग चुका है। अब आपको बदलना पड़ेगा। और हम ये भी जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि धर्मेंद्र प्रधान के जो पिताजी है ना, वो भी आरएसएस के थे। संघ इन्होंने अपने परिवार के सहित मतलब बहुत बड़ी कुर्बानियां आरएसएस को और बीजेपी को दी हैं। ये बिल्कुल किसी की उत्पत्ति ने हिलाया नहीं, हटाया नहीं जा सकता। हम जानते हैं इस बात को, क्योंकि उनके पास में आपकी बहुत सारी पोल पट्टी हैं और उन पोल पट्टी के कारण आप लोग मतलब सही को सही नहीं कह सकते, आप मजबूर हैं, हम समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको झुकना पड़ेगा और आपको इसका इस्तीफा लेना पड़ेगा। बल्कि इस्तीफा नहीं, मैं ये कहूँगा धर्मेंद्र प्रधान को टर्मिनेट करो। बीजेपी में नहीं, किसी भी पार्टी में न जा सके ऐसी स्थिति में इसको लेके आओ और ये राजनीति से बाहर हो जाना चाहिए। इन्हें कोई जन प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं बनता इस तरीके से जो कुचला गया है। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ तमाम ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਜਦ ਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ? 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਾਹੌਲ ਜੀ ਡੰਡਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰੋ, ਹਮਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਕੂੜਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤੇ ਰਹਤੇ ਹੋ ਸਾਰਾ, ਹਰ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ में ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਲਾਤੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਕੂੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਛੋੜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਂ ਸੇ ਐਨਡੀਐਮਸੀ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਬਾਈ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੂਜੇ इतना बड़ा आप सफाई करवा रहे हो अभियान, तो ऐसे है आप इतनी बड़ी सफाई अभियान करा रहे हो, जे असी थोड़ा जहा सफाई देश के वास्ते कर दिए तो की माड़ा। कहते फिर कौन सी सफाई, क्या करना चाहता तू बता। मैं वो काम करूँगा जो कोई नहीं करता। कह रहा क्या? मैं कहीं मैं कूड़े की सफाई करूँगा जी। कहता तू तो सब कुछ ही ले गया। मैं कोई गल नहीं, फिर लै गए तो लै गए। ਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਬੰਦੇ? ਕੱਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉੱਧਰ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਫਾਈ ਸੁਫਾਈ ਕਰਦੇ ਜੀ? मैं दसिया ना, मैं पुलिस वाले कहते आ कई बार, कहते रात को तो सो जा कर। मैं कहा तुमने हमारी ज़िंदगी हराम कर दी, 2 यार मर गए हमारे यार, तुम कहते हो कि बंद कर दे। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਚੱਲੇ, ਡਾਂਗਾ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ? ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਕੇ ਜਾਂ चंगे यार मेरा लग गया ना चंगी जगह। ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ? बस उदा ही। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। युवा जाग चुका है। ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। मैं जी पूरी भाजी वालों पूरी सपोर्ट है। जे किते यार चंगी जगह लग गया ना, जे जित गए जितांगे पक्का 5000%। लोग कहते 100% ये 5000 है। मैं कहना जे पूछा ना चका दी ना दिल्ली पुलिस वालियां दी चौंक 'च खड़ के, तो मैनूं ऐ ना कहो कि मैं हरप्रीत सिंह ढिल्लों ही नहीं, माझे वाले मझैल ही नहीं आए सी दिल्ली विच। ਭਾਊ ਆਏ ਆ। पक्का चकांगे। रहिंदे भावें जंपल दिल्ली दे भी रहे अहीं, पढ़ाई मेरी एजुकेशन दिल्ली स्टेट दी आ, बट इत्थों फिर सारे कोई है नहीं हुण दे। ਆਂਸੂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਆ ਹੰਝੂ? सर बहुत बड़ा अत्याचार। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। सफाई कर रही हैं पूरे, कूड़ा उठा रही हैं। हाँ जी। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं, तो मैं नहीं चाहती कि हर जगह ये क्या बोलते हैं लोग फैलाए। मतलब जितना हो सके आप अपने बैग में भर के ले जाइए, यहाँ पर भी लोग हैं उठाने के लिए, बट ये नहीं कि आप इधर उधर फेंक के जाए। तो जस्ट अपना, सरकार तो अभी मान नहीं रही है, तो ये तो लंबा शायद चले। नहीं सरकार मान जाएगी, कोई नहीं, आज नहीं तो कल पक्का हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। इस ਵੇਲੇ जंतर मंतर ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ तमाम ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨਜੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੋਸਟਰ ਫੜੇ ਨੇ।
ਕਾਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਮੋਦੀ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫਸ ਮੈਟਰ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਅ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਟੂ ਦ ਡੈਥ ਆਫ ਇਟਸ स्टूडेंट। अगला देखो फिर वो एक सटायर है, इतना तो मजनू भी नहीं पिटा लैला के प्यार में जितना युवा पिटा भाजपा की सरकार में। सरकार ते तांज है। एक और देखो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो, देशभक्त बनो ना कि अंधभक्त। तो इन्हें सब ना जरूर गल करांगे। ये क्या लिखा हुआ? सबके अंधभक्त हैं। कोई भी मैसेज या कोई भी वीडियो आता है फटाफट भेजने लगते, ना उसकी कोई जांच करते हैं ना कोई पुष्टि करते हैं। तो इसीलिए उनके लिए ये बोर्ड हमने बनाया है। आपने बड़ा यूनिक बोर्ड पकड़ा हुआ है। यस, थैंक यू। कहाँ से आए हैं आप? हिमाचल प्रदेश। कब आए थे? परसों, कल सुबह। क्या माहौल लग रहा है, कैसा लगा इधर आके? बड़ी सपोर्ट करने ही आए। माहौल तो घर पे देख ही रहे थे, फिर लगा कि घर पे बैठ के मन यहीं लगा है तो यहाँ आ जाना चाहिए। सरकार ने जिस तरीके का लाठी चार्ज हुआ, अच्छा चलो आपने क्या पकड़ा हुआ है? स्टूडेंट पे जो लाठी चार्ज हुआ है, पहले तो पेपर लीक का था जो स्टूडेंट के ऊपर वाकई इनजस्टिस था, लेकिन अभी सरकार को इसका भी जवाब देना है कि लाठी चार्ज क्यों की जब पीसफुल प्रोटेस्ट था। लाठी चार्ज किए तो किए, लेकिन लाठियों पे कील क्यों डाली है? क्या चाहते हैं ये? बच्चों को मारना चाहते थे पूरी तरह। और सेकंड चीज़ की ये कि वहाँ पे जो 20 तारीख को जो भी हुआ, वहाँ पे लड़कियों के साथ भी असॉल्ट किया गया, पुलिसों ने बहुत बुरी तरह मारा, उनको प्राइवेट पार्ट पे भी मारा, वो भी गलत बात है। एक्सपायर टीयर गैस के छोड़े गए इनके ऊपर, ये भी गलत है, इसका भी जवाब सरकार को देना है। तुम तो बड़ा एक रोचक चीज पकड़ के खड़े हो। लिखिए, इस पे लिखा हुआ है कि इतना तो मजनू भी नहीं पीटा लैला के प्यार में, जितना युवा पीटा इस भाजपा की सरकार में। मैं भी पीता हूँ। ये मैं देख, आपको भी मारा? डंडे लगे? बहुत डंडे लगे, 1819 डंडे लगे पीछे जाते पीठ पे। हौसला नहीं टूटा है, मैं अब भी खड़ा रहूंगा। दिल्ली से ही हो? मैं सहारनपुर से हूँ। यूपी सहारनपुर। यूपी सहारनपुर। आ तस्वीर है कि हौसला नहीं टूटा। वो शख्स कहता है कि 18 तो 20 डंडे लगे। एक और आ देखो तुसी आ तस्वीरां ने कि इतने जैनजीज प्रोजेक्ट बताएंगे क्या? जीरो अकाउंटेबिलिटी का सिंबल, जीरो अकाउंटेबिलिटी का सिंबल है ये। देख लो मोदी जी क्या कर रहे हो तुम, ये हो तुम। लड़कियों के साथ इतने ज्यादा उन्होंने इंसानियत नाम की चीजें, शर्म आनी चाहिए उनको। लड़कियों के चस्ट पे चढ़ के, पुलिस के हाथों सेफ नहीं है लड़कियां, उनको इतना ज्यादा बेरहमी से मारा गया लड़कियों को, और बोल रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे। क्या कर लोगे तुम लोग? ये लोग सोच रहे हैं कि ये लोग कुछ दिन चिल्लाएंगे फिर शांत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम नहीं शांत होंगे, हम जब तक आप इस्तीफा नहीं दोगे हम यहीं पे रहेंगे। मैं कह रही हूँ, मैं लड़की, और ये अब मैं बोल नहीं सकती, समझ लो आप लोग। ये तस्वीरां ने इथों दियां कि ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ इस अंदोलन ਦੀ ਜਿਹੜੀ एक तस्वीर है वो नज़र आਉਂਦੀ। एक ਤੁਹਾਨੂੰ खूबसूरत तस्वीर है, देखो कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ लगातार कही जा रही ने कि इत्थे ना कोई हिंदू है ना सिख है ना मुसलमान है, ये बच्चे ने, ये स्टूडेंट ने। आ देखो कि आ हवा ਜਿਹੜੀ है, आ सेवा ਜਿਹੜੀ हो रही है। खालसा जी वो मुसलमान सी, तुसी सिख हो, लोकी कहते हैं कि मुल्क वंडिया गया, ये वंडिया तो नहीं गया? नहीं नहीं, यह प्यार है। सिख कौम कभी जात पात नहीं वेखदा। गुरु घर 24 घंटे खुला है, चाहे मोमडन होए चाहे कोई दा भी धर्म होए, 24 घंटे गेट खुले हैं, 24 घंटे लंगर है। बोले सोनिहाल। आप बोलो। We are here demanding transparency and accountability from the government, because government ने तो मजाक समझ के रखा है। हम बच्चों का कोई फ्यूचर का उनको नहीं। We citizens deserves to be heard। सरकार कह रही है कि अभी तो कुछ नहीं कर रही है सरकार की आज मीटिंग हुई, सरकार अभी तो नहीं मानती दिख रही, लेकिन सरकार को करना पड़ेगा ना अल्टीमेटली, इसीलिए हम यहाँ पे हैं। आप दिल्ली से ही हैं? जी, मैं कन्नौज से हूँ। यूपी तो लोग ने। भाजी कित्थों आए? दिल्ली में यहाँ जी। की माहौल नज़र आਉਂਦਾ है? माहौल तो अनबिलीवेबल यार, मज़ा आ गया देख के कि एनर्जी है। मतलब आई एम 36, आई फील लाइक आई एम 16 राइट नाउ। एजेंसीज ने इतना पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट की हुई है कि इट्स एवरीवन शुड कम एंड एक्सपीरियंस दिस। हाँ, हिंदी में बोल सकते हैं ना। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कछुआ से भी धीरे चलते हैं, क्योंकि पेपर लीक का जो मुद्दा था, कांग्रेस के 10 साल में भी पेपर लीक होता था। मोदी जी का 12 साल हो गया, तो 10 और 12 साल जोड़ लीजिए 22 साल। 22 साल के बाद 12 बजे रात में प्रधानमंत्री जी के ख्वाब में आता है
कि पेपर लीक इस देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, युवाओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके लिए फास्ट ट्रैक बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, कैबिनेट का मीटिंग बुलाना चाहिए। तो जिस आदमी को 22 साल के बाद में पेपर लीक का मुद्दा समझ में आता है, वो आदमी असली पप्पू है, क्योंकि ये समझने के लिए मोदी जी को लग गया 22 साल। तो असली पप्पू हमारे माननीय मोदी जी हैं। दूसरा, एक आखिरी बात, हमारे देश का एक और दुर्भाग्य है कि हमें उम्मीद था कि झूठ बोलने में, झांसा देने में प्रधानमंत्री जी नंबर 1 हो जाएंगे, लेकिन इस मामले में भी बाजी मार गया ट्रंप। मोदी जी दूसरे नंबर पर अटक गए। तो आप ना झूठ बोलने में ना झांसा देने में नंबर 1 बने। और आज देश का युवा का मतलब क्या हुआ? युवा का मतलब देश का भविष्य आज सड़कों पे है। आपके पास 2 ऑप्शन था मोदी जी, कि आप देश के साथ खड़े होइए, देश के भविष्य के साथ। बस 1 मिनट, इम्पोर्टेंट बात है, आप जाना चाहे जा सकते हैं, कि एक तरफ देश का भविष्य है और दूसरे तरफ देश का ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। आप धर्मेंद्र प्रधान को गले लगाते हैं, लेकिन देश के भविष्य को गले नहीं लगाते हैं। आप बर्गर खा रहे हैं, कहाँ गया बर्गर? नहीं, वो रख दिया मैंने। खा लिया? हाँ जी, हाँ जी। ये बर्गर को लेकर बड़े सवाल उठते हैं, फंडिंग कहाँ से आती है? नहीं, देखो, एक बर्गर हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, दे तो लोग ही रहे हैं और आ भी यहीं से ही रहा है, कहीं विदेश से तो आ नहीं रहा। जब तक आदमी खाएगा नहीं जिएगा कैसे? ये चीज़ भी तो ज़रूरी है ना। तो जो चीज़ ज़रूरी है, उस चीज़ जो मेन काम है ना, उस पर फोकस करना चाहिए। बर्गर खाना खा रहा है, ये तो मेन चीज़ है। ये भी नहीं खाएगा तो फिर आदमी जिएगा क्या? मतलब आपके चाहते हो हाँ लोग ऐसे पड़े रहें, मर जाएं, कुछ खाएं ना। अननेसेसरी चीज़ों से कुछ नहीं होता। किसी पार्टी को आगे मत रखो, जो मेन फोकस है उस पर ध्यान दो। पार्टी कोई आएगी बदल जाएगी, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। जो हमारा मेन मोटिव है, एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। अगर वो ठीक नहीं होगा तो आज कांग्रेस, कल आप, कल बीजेपी, इससे कुछ नहीं मिलने वाला किसी को। मेन फोकस है एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए, स्ट्रक्चर बेसिक से लेकर ऊपर तक ठीक होना चाहिए। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ ਜੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 버ਗਰ ਖਾਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸਤੀਫਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ नहीं देते उतना चिर तक ये प्रदर्शन। माँ भी आई है मैदान में। मैं आई हूँ फतेहपुर ज़िले से और मैं छात्रों के सम्मान में, ये माँ भी है मैदान में। ये बच्चे सारे हमारे बच्चे हैं। मेरा बच्चा चाहे पेपर नहीं दिया हो, लेकिन ये सारे बच्चे जो दिए थे देश का भविष्य हैं। इनके साथ जो सलूक किया गया है, सरकार ने जो सलूक किया है महिलाओं लड़कियों के साथ, गुप्तांगों में जिस तरह से इन्होंने अपनी गंदगी दिखाई है, वैसा कोई नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ 2 लाइन। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। ये वक्त बता रहा है कि गद्दार कौन है, ये वक्त बता रहा है कि गद्दार कौन है। तरन्नुम गुनाहगार भी क्या कम गुनाह है। ये माँ भी आई बच्चों पे ये जानिशार है। ये वक्त बता रहा है कि गद्दार कौन है। ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। नौकर पागल हो गया है। आप भारत का संविधान लेकर चल रहे हैं। हम राजा हैं यहाँ के, वो नौकर है, उसको काम करना नहीं आ रहा है, फौरन कुर्सी खाली करे। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ। हाँ बोलिए ना। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, क्योंकि हमारे धर्म में यह है कि आप जुल्म को ना 3 तरीके से रोक सकते हैं। आपके ईमान की 3 बातें हैं। फर्स्ट कैटेगरी है आप उसे हाथ से रोक दो जुल्म को। आप दूसरी कैटेगरी है कि आप उसे जबान से रोक दो। फिर थर्ड कैटेगरी है उसको दिल में बुरा जानो, क्योंकि मैं तो मजलूम हूँ, औरत हूँ, हाथ से रोक नहीं सकती, तो मैं जबान से रोकने आई हूँ। आज ये जुल्म हो रहा है बच्चों पर। ਆ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਭਿੱਜੇ ਪਏ ਨੇ ਪਸੀਨਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हालांकि ये बड़ा पुराना तराना है। तो अगे है हम लड़ेंगे उस साथी उदास मौसम के खिलाफ। तो इत्थे सरकार के खिलाफ जोड़ा गुस्सा है वो लगातार स्टूडेंट्स वाधा होया नज़र आ रहा है। तुसी देखो कोई यूपी तो है, कोई महाराष्ट्र तो है, कोई बिहार तो है, कोई दिल्ली तो है, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भी। ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਹੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ CJP ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ। क्योंकि 20 तारीख को मारा गया था पुलिस ने, ठीक है, बहुत लड़कियों को मारा था, मैं भी उसी में ही थी। और उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हमको इतनी जल्दी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, ठीक है। बाकी सब कर लो, ये लॉ अकॉर्डिंग टू द लॉ इट इज़ नॉट अलाउड टू एक्चुअली मेल जो ऑफिसर है ना उनको अलाउ नहीं है हाँ लड़कियों के ऊपर हाथ उठाना चाहिए। पर इतनी बेरहमी से मारा गया था। आपको भी लगी उस दिन? हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, हमें कैप्टिव करके रखा था। ये 4:30 बजे की बात है जब अभिजीत को उठा के लेके गया था और हमारे पास कोई लीडर नहीं था, तो सारे बच्चे भटके हुए थे वहाँ पर, किसी को कुछ खबर नहीं क्या करे उस टाइम। तो पुलिस बस टीयर गैस मारते गए, सारे आंखें सबके लाल है। लड़कियों को फुटपाथ में भी नहीं बैठने दे रहे थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था हम लोग वापस चले जाएंगे। तो लंगड़ा के भी बच्चे भागे हैं। कहाँ से आए हो आप? मैं तो नॉर्थ ईस्ट से हूँ, पर मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, पर मैं बहुत 10 दिन से हूँ यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में। कब तक रहना है? जब तक ये रेजिग्नेशन नहीं हो जाएगा। उनको ऐसा लगता है ट्वीट करके और एक ऐसा वीडियो डाल के हम लोग ऐसे नीचे हो जाएंगे या फिर मान जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो रीज़न के लिए आए थे हम लोग कि धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन चाहिए, वही होना चाहिए, उसके अलावा हमें और कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਿੰਘ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਨਿਹਾਲ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜੇ ਸੀ? ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਕਢਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫਸ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਢਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫਸ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵੀ ਦਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਢਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾੜੀ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋੜੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੇਫਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਝ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ? ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਦਾ ਨਿਹਾਲ ਨੂੰ? ਬਸ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਆਗਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਮੋਰਚਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨਜੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, GDC ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ।